अभी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ की पूरी टीम की ओर से आप सब लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत 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 शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। परशुराम जयंती भी है। भगवान श्री परशुराम 7वें अवतार, The founder of Kerala. that's right, founder of Kerala and Goa and the Yes. all the entire Western Ghats. Was he the 6th avatar or the 7th? He'll be the 6th. Yes, yes. छठे अवतार विष्णु के, क्योंकि 7वें तो श्री राम रहे, 8वें श्री कृष्ण, 9वें गौतम बुद्ध और 10वें कल्कि का अभी इंतजार है। तो आप सब लोगों को एक बार फिर अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब लोगों को बधाई। उसके अलावा प्रदीप जी आज बड़ा शुभ दिन है, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा शुभ दिन है। अरविंद केजरीवाल जो को मतलब क्या हो गई, वो बेल मिल गई। बेल, इंटरम वो 20 दिन के लिए। यस यस। एक्चुअली 21 दिन के लिए, 21 डेज। अरे कोई 20 दिन बोल रहा है, एक्चुअली है 21 दिन के लिए। फिलहाल आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, शलोम, नी हाउ इन चाइनीज एंड कोनिचिवा इन जापानीज। प्रदीप जी, Abariyako Jambo for viewers from East Africa, South Africa and the entire African continent. Wonderful. We have fantastic viewers and observers from there. absolutely, absolutely. They I love keep Africa. interacting with us. I love Africa. Man, there's no other continent like that. It is beautiful, absolutely out of the world. Absolutely lovely. So, Pradeep ji, Arvind Kejriwal gets interim bail and he is allowed to campaign. Now that's a huge boost, not just for the Aam Aadmi Party, but even for the India Alliance. Zabardast hua hai, sir. Sir, apart from that, the most important thing is the independence of judiciary. The judiciary has shown itself to be totally independent. Ji. When it began with Justice Khanna said that I am going to give interim bail to Mr. Kejriwal. He wanted the say of the enforcement directorate. Why don't you do whatever you want to do? But I am convinced that he should get an interim bail. And then you have the ED going out of the way to see that oppose alag case laws, ye wo bol ke ki it's not his fundamental right, it's not his fundamental duty, whatever. He says oppose it at any cost. Nothing would, the earth or heavens would not fall if he's not given bail. जी, दुरुस्त बात है। In spite of all the arguments, I think the bench had made their minds very clear. Justice That Khanna, your case was filed in 2022, you have arrested Mr. Kejriwal in 2024. दुरुस्त बात है। Justice Yes. Sanjeev Khanna and Justice Deepankar Datta. Yes, sir. And you had pointed this out, Pradeep ji. Bilkul, I was very skeptical because usually my experience has been when the court says something, it may actually mean something else. I don't know. But you were very sure. I was कि very एक बार sure. सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो कह दिया। In fact, last hearing पर उन्होंने ये कहा था, we are inclined to give bail. Bilkul. And he has been continuously telling that same thing, that I am going to give him an interim bail. You please put up your arguments. So he was sure and very confident judge. And look at them. A very confident judge and independence, steady independence. We've been always talking about him. लेकिन प्रदीप जी देखिए, ईडी मतलब एक नया एफिडेविट डाल दिया, पता नहीं क्या कुछ डाल दिया। अरे क्या है यार? ED ने पूरे ताकत लगा दिया to see that he doesn't come out. And they said this could be probably one of the rarest cases where, because politicians cannot be treated differently. That is what ED said. If that is the case, then what about the case of Dilip Ray? Delhi High Court, Dilip Ray was convicted. He has been convicted of the charges filed against him. The Delhi High Court, that same lady judge who had refused Mr. Kejriwal bail, who has refused Manish Sisodia bail, she stayed the conviction and granted him bail, saying that he is standing for election. He is 71 years old. This may well be his last chance to stand for election. You can't have double standards. Let's be very clear. With all due respect to the judiciary, everybody expects a certain uniformity when dealing with everybody. And especially when there is a call, all from, at least from a large section of the society, that we are witnessing a kind of totalitarian state. If allegations, even coming from 30 to 40% of the population, if they believe that, I mean, the judiciary have to come and show the iron hand to show that fairness in every aspect. The equality, one of the pillars of a Sir, ये constitution. the preamble. पहली चीज है जहां पर, let's be very clear, without due respect to the judiciary, everybody expects a certain uniformity when dealing with everybody. And especially when there is a call, all from, at least from a larger section of the society, that we are witnessing a kind of totalitarian state. If allegations, even coming from 30 to 40% of the population, if they believe that, I mean, the judiciary have to come and show the iron hand to show that fairness in every aspect. The equality, one of the pillars of a constitution. The preamble.
ये पहला इस किस्म का सेक्शन है जहां पर द प्रोसेस इटसेल्फ इज द पनिशमेंट. Process is the punishment. That and which is sad. ये क्या मतलब हुआ? The whole tenet of Anglo-Saxon law on which Indian law is based is you are innocent till proven guilty. Now you are guilty till proven innocent. मतलब आप जेल में हैं, आप जेल में रहिए और आप अपनी इनोसेंस प्रूव कीजिए. मैं कहता हूं आपने चोरी करी, वो कहता है यार मैंने तो नहीं करी. आप प्रूव कीजिए कि आपने नहीं करी. कैसे करेगा आदमी? And just now we saw an interview with KCR. I think it was on India Today, Yes, if I'm not bilkul. mistaken, where he said it's a bogus case. Fabricated case. He says it's a state policy. The liquor policy is a state policy. You may like it, you may not like it, it may be good, it may be bad. But how is it a scam if it is a state policy? And you have been elected to make policies for the country, That's right. for the state. इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की न जाने कितनी पॉलिसीज हैं, कितनी पॉलिसीज हैं आपकी, Questionable. which are questioned by so many people कि ये तो गलत हुआ. जैसे डिमोनेटाइजेशन फॉर एग्जांपल, तो क्या स्कैम था वो? Was it a scam? And number two, most important, प्रदीप जी, before we go to Mr. Gade Patil, जो अभी हमारे साथ हैं, आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, and by the way, he's been my favorite prime minister for a long time, वो कहते हैं राहुल गांधी जी से और कांग्रेस से, क्या तुम्हारी सेटिंग हो गई है अंबानी और अडानी से? क्या टेम्पो में भर भर के पैसा तुम्हारे पास आया, काला धन तुम्हारे पास आया क्या? अब मेरा ये कहना है, ये कोई छोट भैया नेता नहीं है बीजेपी का जो बोल रहा है प्रदीप जी, ये तो प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं. Country. अगर प्रधानमंत्री जी ऐसी बात कर रहे हैं तो ये बड़ी बड़ी एजेंसी जिनका हम नाम लेते हैं हर रोज, उन्होंने क्या किया है? जिन इंडस्ट्रियलिस्ट का उन्होंने नाम लिया है उनके ऊपर तो रेड होनी चाहिए ना प्रदीप जी. प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं. That is what Rahul Gandhi जी वही बोल रहे हैं. Rahul Gandhi जी says, why don't you? और ये टेम्पो, आप टेम्पो क्यों बात कर रहे हैं? आपको एक्सपीरियंस है कि टेम्पो में डिलीवर होता है कैश. तो आप एजेंसीज भेजिए, रेड कीजिए और राहुल गांधी और इनकी टेम्पो सर्विस को आप जब्त कीजिए. मतलब ये और क्या? राहुल गांधी जी कहा कि ये संकेत है जी, जब अपने ही मित्रों के खिलाफ आप बोलना शुरू कर देते हैं, एक्शन करने लेने की बातें करते हैं, तो उसका ये संकेत है कि आप हारने वाले हैं. बालाजी गड़े राहुल गांधी जी, राहुल गांधी. बालाजी गड़े पाटिल इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के. बालाजी गड़े पाटिल साहब नमस्कार. सर नमस्कार. सर नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. बड़े दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं सर, बड़े बिजी लग रहे हैं. मुझे लग रहा है आजकल आप बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे चुनाव में. कैसे हैं सर? जी सर. सर एकदम बढ़िया, पूरा ग्राउंड पे लोकसभा के चुनाव के लिए काम किया. नांदेड़ में बहुत सारी उल्टा पुलट हो गई, आपने देखा होगा. तो उसके बाद एक ईमानदार कार्यकर्ता के नाते पार्टी की पूरी कमान कंधे पे लेके वहां पे हमने पार्टी का काम किया है और कांग्रेस नांदेड़ में चुन के आ रही है, जीत रही है कांग्रेस. क्या बात नांदेड़ है में सर, आपको बधाई, आपको पहले से ही बधाई. अशोक चौहान जी का कोई इफेक्ट नहीं है नांदेड़ में. अशोक चौहान जी का कोई इफेक्ट नहीं है नांदेड़ में जी. उसका उल्टा इफेक्ट हो गया. वहां पे अशोक चौहान जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया था, जिनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, 1992 से वो कंटिन्यू मिनिस्टर रहे. 1987 में पहली बार उनको 27 साल की उम्र में सांसद बनाया गया. जी. तो इतना सब कुछ देने के बाद अशोक चौहान बोलते हैं कि मैं वहां पे विकास के लिए गया हूं. तो यहाँ पे आप मुख्यमंत्री थे, खुद क्यों नहीं किया? तो लोग जो है, पार्टी ने उनको सब कुछ दिया था. तो अशोक चौहान, जो आपने जो प्रदीप जी क्वेश्चन पूछा कि उनका इफेक्ट क्या हुआ, तो उनका इफेक्ट ये हुआ कि लोगों ने कहा कि जिस पार्टी ने सब कुछ दिया उसके साथ ये बेईमानी कर सकते हैं तो हमारे साथ तो कर ही सकते हैं. इसलिए पूरा लोगों ने कांग्रेस के साथ, पब्लिक वहां पे खड़ी हुई और वहां पे कांग्रेस का उम्मीदवार जीत के आ रहा है. प्रधानमंत्री वहां पे आए, देवेंद्र फडणवीस आए, अमित शाह आ गए, उसके बाद गडकरी आए. पूरी की पूरी बीजेपी की सेंट्रल की स्टार प्रचारक, राज्य के स्टार प्रचारक वहां पे आके गए. लेकिन फिर भी नांदेड़ की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी थी और कांग्रेस वहां पे जीत रही है. तो गड़े पाटिल साहब, आज अच्छी खबर आई है. राहुल गांधी जी ने भी उसका स्वागत किया है, प्रियंका जी ने भी स्वागत किया है, अखिलेश यादव जी ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि आदरणीय सम्मानीय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है कि वो 20 दिन के लिए कैंपेन कर सकते हैं. आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? अभी जिस तरह से मोदी जी ने और उनके मंडली ने इस देश में लोकतंत्र और प्रशासन को उल्टा पुलट किया है जी. तो चुनाव के पहले हम करे सो कायदा और हम कुछ भी कर सकते हैं, ये जो घमंड था उनका,
उसी घमंड के चलते इस देश में इस तरह का माहौल उन्होंने बना के रखा था। एक मुख्यमंत्री को आप डायरेक्ट उठा के लॉकअप में डाल देते हो, तो आज उनकी जो जमानत हुई है, ये हम न्याय व्यवस्था की, लोकतंत्र की जीत कहेंगे। और आने वाले दौर में किसी मुख्यमंत्री को, किसी बेगुनाह को, किसी आम आदमी को भी, आम वोटर को भी अगर इस तरह के हालात को फेस नहीं करना है तो बीजेपी इस देश में हटानी पड़ेगी। और लोग वो काम कर रहे हैं। इस बार का चुनाव सर जनता लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, हमारे साथ मिलके, विपक्ष के साथ मिलके जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ने चुनाव को हाथ में लिया है। तो देश में 400 पार तो छोड़िए, बीजेपी को लोग बोल रहे हैं अभी 400 पार नहीं, भाजपा तड़ीपार बोल रही है। और भाजपा 4 जून को तड़ीपार हो जाएगी और इंडिया आघाड़ी का, गठबंधन का सरकार इस देश में बनने जा रहा है। तो गड़े पाटिल साहब, जो आपने अभी, चलिए केजरीवाल जी जो करेंगे करेंगे, देखा जाएगा। ये भी बात हो रही है शायद वो मुंबई भी आएंगे एमबीए का प्रचार करने के लिए। दिल्ली और पंजाब तो जाएंगे जाएंगे, वहां तो उनके कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट उनके। दिल्ली में 3 कैंडिडेट कांग्रेस के हैं और तीनों के लिए, सातों के लिए प्रचार करेंगे। और पंजाब में आप लोगों की फ्रेंडली फाइट है, जो भी जीते इंडिया लाइन जीतेगी। लेकिन उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। लेकिन जो आपने बात अभी नांदेड़ की कही, बड़ी दिलचस्प बात आपने कही। इसके बावजूद के भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया नांदेड़ में, उसके बावजूद आपको ये लगता है कि आपका कैंडिडेट जीत रहा है, मतलब आपका उम्मीदवार जीत रहा है यहाँ पे? जी सर, लगता नहीं है, ये जमनी सच्चाई है। कुल मिला के मैंने वहां पे 108 गांवों में सभाएं ली लोकसभा के प्रचार के लिए बीजेपी के खिलाफ। हाँ, मैं खुद ने 108 गांवों में। तो आज जो परिस्थिति है, वहां की जो स्थितियां है, हालात जो है, और जमीनी जो सच्चे आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, तो वहां पे मराठा रिजर्वेशन, मराठा समाज पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ खड़ा था, मुस्लिम का पूरा वोट कांग्रेस के साथ था, ओबीसी का वोट कांग्रेस के साथ था। उसके बाद वहां के जो बेरोजगार युवा थे, उनका वोट कांग्रेस के साथ है। तो इतने बुरे हालात बीजेपी के थे। 2 बार सीएम रह चुके अशोक राव चौहान जी को उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो हमारी उनकी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी, भोकर कॉन्स्टिट्यूंसी में, गांव में लोगों ने घुसने नहीं दिया। गांव से निकाल बाहर, बहुत सारे गांव में, एक नहीं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां से उनको निकाल बाहर लोगों ने कर दिया। उनके खिलाफ नारे किए, उनको, उनकी धर्मपत्नी, वहां के एक्स एमएलए अमिता चौहान जी को गांव से निकाल दिया गया और लोग उनके खिलाफ है। तो आंकड़े है सर कि वहां पे बीजेपी बहुत बुरी तरह से हार रही है। प्रदीप जी, गड़े पाटिल जी, हम लोग विदर्भ से लेते, विदर्भ में प्रकाश अंबेडकर, मायावती 10 सीट में आपको तकलीफ देने वाले, बिकॉज आप ही के वोट वो खाने वाले। मराठवाड़ा में अशोक चौहान जी, मुंडे, पूरे मुंडे ग्रुप वहां पर है एक साथ, और तो वहां पर चौहान ऐसे था, आपने कहा कि वहां पर इफेक्ट नहीं है। मगर पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार जी के खुद घर में बारामती में अजित पवार, सुनेत्रा पवार हिला कर रख दिया है। पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में एक इफेक्ट है, आप बोले कुछ भी बोलो, अजित पवार एक खिलाड़ी है, लोग मानते हैं, संगठन शक्ति उनके पास है और बीजेपी साथ में जुड़ा हुआ है। कोंकण में आपको पूरे डिस्टर्ब कर दिए हैं, नारायण राणे, उदय सामंत, खुद एकनाथ शिंदे जी ठाणे में, फिर आगे, तो क्या सब जगह ये तकलीफ है। और नॉर्थ महाराष्ट्र में तो खड़से जी आपके साथ थे, अभी सीधा जाके उनके पास बैठ गए, बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए, वापस चले गए। यस, तो ये क्या हो गया? ये आपको लग रहा है इतना आसान होगा आपके लिए, एमबीए के लिए? सर अभी क्या है कि लोग किसी नेता का सुन नहीं रहे सर। अभी जिस तरह से आपने बारामती का जिक्र किया, अजित पवार खिलाड़ी नहीं, अभी अजित पवार गुंडे की तरह नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो सीधा धमका रहे हैं, अगर मेरा काम नहीं करोगे तो मैं आपको फंड्स नहीं दूंगा, मेरे ऑफिस में आप फाइल कैसे क्लियर करते हो मैं देखूंगा। वहां के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, अधिकारी है, उसके बाद वहां के जो भी वर्कर है, उन लोगों को ये जो बीजेपी के माध्यम से बेकायदेशीर उनको सत्ता जो मिली है, उस सत्ता से लोगों को डरा के अपने साथ ले रहे। लेकिन मैं कुछ दिन उस बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी में भी घूम चुका हूँ, बारामती लोकसभा में घूम के आया हूं मैं। तो वहां पे जो उनके साथ भी जो लोग हैं सर, वो लोग उनके साथ दिख रहे हैं, लेकिन वो वोट महाविकास आघाड़ी को करेंगे। और वो खुद बोल रहे कि हमारी मजबूरी है,
हमारी मजबूरी है, लेकिन हम राष्ट्रवादी के शरद पवार जी के साथ है, महाविकास आघाड़ी के साथ है। तो रही बात एंटायर महाराष्ट्र की, अगर बात करूं, मैं जहां जहां पे जाके आया हूं, मैं कोल्हापुर में एक हफ्ता वहां पे काम कर चुका हूं। तो कोल्हापुर में कांग्रेस जीत रही है, उसके बाद सातारा में महाविकास आघाड़ी जीत रही है, उसके बाद बारामती में भी सुप्रिया ताई की सीट वहां पे जीत रही है। और पूरा का पूरा अजित पवार और उनकी धर्मपत्नी छोड़ के उनका सगा भाई भी उनके साथ नहीं है। उनका सगा भाई ने भी सुप्रिया जी को सपोर्ट किया है, और लोग वहां पे जो है, लोगों ने इनको ठुकरा दिया है। तो वो कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, कितना भी पैसा वो खर्च करे, क्योंकि उनके पास अभी खोखे बहुत ज्यादा है सर, जनता से लूटे हुए खोखे हैं। तो लोगों ने देखा है कि किस तरह से भोपाल में मोदी जी कहते हैं कि नेचुरली करप्टेड पार्टी है, 70,000 करोड़ का घोटाला है, और उसके बाद मोदी जी बुला देते हैं, आ जाओ अजीत भाई और ये ले लो तिजोरी की चाबियां। लेकिन यहाँ पर गड़े पाटिल साहब एक चीज है, छोटी सी बात है ये, हो सकता है कि आप मुझसे एग्री ना करें। देखिए साहब, शरद पवार जी के लिए और शरद चंद्र पवार एनसीपी के लिए ये सर्वाइवल की फाइट है। बारामती उनको जीतना ही है, किसी भी कीमत पर जीतनी है। क्योंकि अगर मान लीजिए अजीत दादा पवार वहां जीत जाते हैं, तो हो सकता है कि शरद पवार जी को दोबारा उठना मुश्किल हो, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन अगर अजीत दादा पवार हार भी गए तो क्या होगा, वो जाकर लेट जाएंगे, साष्टांग प्रणाम कर लेंगे शरद पवार साहब के सामने, आ जाएंगे वापस, और डेप्यूटी सीधी बात है, ये होने वाला है। आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए साहब, शरद पवार साहब का दिल बहुत बड़ा है। आज भी जैसे वोटिंग के बाद सुप्रिया ताई अजीत दादा के घर गई, काकी का चरण स्पर्श किया, फिर उसके बाद अजीत दादा जी ने उनको बड़े प्यार से गले मिलाया, बहुत आशीर्वाद दिया। मेरा ये कहना है कि अजीत दादा के लिए ये इतना हो सकता है इंपॉर्टेंट हो अपनी पार्टी को दिखाने के लिए कि देखो मैं जीत सकता हूं, लेकिन हार गए तो क्या हो गया, आ जाएंगे वापस गड़े पाटिल साहब। नहीं सर, नहीं, अभी जो आपने जिक्र किया है उसी मुद्दे के ऊपर हम भी अपनी पार्टी के अंदर ऊपर के नेताओं से बात कर रहे हैं कि अभी अशोक राव चौहान जाने के बाद वहां पे मैं यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया हूं, नांदेड़ का। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको। तो इस सॉरी आपको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया सर, बहुत शुभकामनाएं। परशुराम जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी अब बोलिए सर, अब आप बोलिए सर। तो हमने वहां पे जो आपने जिक्र किया, तो हम अपनी पार्टी में भी बात कर रहे हैं कि कल सत्ता आने के बाद जिन लोगों ने बुरे हालात में पार्टी ने सब कुछ देने के बाद पार्टी के साथ गद्दारी की, धोखाधड़ी की, उन लोगों को फिर से हमारे ऊपर मत बिठाओ। अगर ऐसा करोगे तो हम अंदरूनी लोकतंत्र के माध्यम से पार्टी के अंदर हम उसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करेंगे। ये हमने हमारी पार्टी को कहा है। और शरद पवार जी, जहां तक पूरा देश जानता है, बहुत बड़े नेता है। तो जिस तरह की राजनीति अजीत पवार जी ने की, जिस तरह से आरोप कर रहे हैं, तो सर एक जमीनी सच्चाई भी मैं बता देता हूं। बारामती के लोग अजीत पवार को चुन के इसलिए दे रहे थे, अजीत दादा को, क्योंकि उनके साथ शरद पवार साहब थे। अभी वहां के लोग बोल रहे हैं कि इनकी दादागिरी को, इनकी टगेगिरी को, इनकी गुंडागर्दी को हम इसलिए सह रहे थे क्योंकि ये शरद पवार जी के साथ थे, क्योंकि इनके पीछे शरद पवार थे। तो अभी शरद पवार साहब के खिलाफ अगर वो अजीत पवार गए हैं तो हम इनको गिराएंगे। तो अस्तित्व की लड़ाई आपने जो कहा कि बराबर है कि वहां पे उनकी ताकत शरद पवार साहब को, सुप्रिया जी को दिखानी पड़ेगी, लेकिन जनता किसके साथ है? आम आदमी जो इसमें वोट करने वाला है, 20 लाख वोटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो वोटर आज इनके साथ खड़ा है। तो आपने जो कहा वो अगर हो, मुझे नहीं लगता कि उस तरह से फिर से डिसीजन। बट बालाजी गड़े पाटिल जी, बात यह है कि शरद पवार जी हमेशा सरप्राइज करते हैं, और अभी फिर उन्होंने सरप्राइज किया। बोले छोटे छोटे पार्टी, रीजनल पार्टीज कांग्रेस के साथ मर्ज करेंगे। अब कांग्रेस के साथ मर्ज करेंगे, और अब बोलना जब थर्ड फेज खत्म हो गया है, 4 भाग में है, तो लोगों के मन में जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज है क्या बीतता होगा कि शरद पवार साहब ने ऐसे क्यों बोला? क्या उद्धव ठाकरे जी भी जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे जी ज्वाइन करेंगे? क्या एकनाथ शिंदे जी बोले हाँ उद्धव ठाकरे जी ऑलरेडी कांग्रेस ही है। एक चीज है कि ये सब कांग्रेस से फूट के आए, चाहे शरद पवार जी हो, केसीआर हो, वाईएसआर हो, ममता बनर्जी हो। तो क्या नाना पाटोले जी ने भी बोला हाँ, राहुल जी ने ऐसा चर्चा किया कि बहुत सारे पार्टी जुड़ने वाले हैं। तो सच्चाई क्या, हकीकत क्या है? ये वापस कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है।
नहीं सर, अभी ऊपर जो बड़े नेता है उनके बीच में क्या बात हुई वो मुझे मालूम नहीं, मैं एकदम जमीन पे काम करने वाला। लेकिन शरद पवार साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, उनका कोई भी स्टेटमेंट जो है वो तर्क के या फिर किसी कैलकुलेशन के आधार पे होता है। तो अगर ऐसा होगा देश में, तो इस देश के लोकतंत्र के लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ही है जो देश के लोकतंत्र को बचाएगी। और आने वाले दौर में जिन पार्टियों को, अभी देखिए कि बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा, राष्ट्रवादी को तोड़ा, और जैसे हम झारखंड में देख रहे हैं और अदर स्टेट में भी देख रहे हैं, तो जो जिसको बाजार बोलते हैं वो इस देश में बीजेपी ने चालू किया है। तो उन पार्टी को सरवाइव करने के लिए अगर कांग्रेस का वोट और उनका वोट एक दूसरे के विरोध में लड़ने से अगर वो स्प्लिट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो एक साथ आके इस देश में बीजेपी को हराने के लिए और इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए अगर ऐसा होगा तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा होगा। इसमें उद्धव ठाकरे जी के पार्टी को लॉस होगा। मींस कैलकुलेशन जनरल ऑब्जर्वर्स का है कि अगर कांग्रेस में ही विलीन हो रहा है, सबको मर्ज होना है, तो सब लोग कांग्रेस को ही वोट देंगे। अब बाकी अलग अलग टुकड़े को क्यों वोट देंगे? बिकॉज आप जाके जुड़ने वाले उसमें कांग्रेस। तो क्या है, बड़ा मास्टर स्ट्रोक है शरद पवार जी का कि कांग्रेस को कंसोलिडेट करने के लिए। नहीं, अभी कौन सी पार्टी साथ में आएगी नहीं आएगी ये सब हाइपोथेटिकल है कि आएगी या नहीं आएगी। तो अभी जो उन्होंने कहा है कि आएगी तो हम कांग्रेस उनका खुले दिल के साथ सभी पार्टियों का स्वागत करेंगे, उनका सम्मान उनको मिलेगा और मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन अभी कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, और नहीं भी आते हैं तो भी इंडिया आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से हम एक साथ लड़ रहे हैं। अभी उद्धव जी है, हम है, शरद पवार साहब है, अभी ये तीनों पार्टियों की यूनिटी आप सब तरफ देख रहे हैं। तो वो आने वाले दौर में देखेंगे कौन। मगर मोदी जी ने आज खुले ऑफर दिया। मोदी जी बोले कि नकली सेना और शरद पवार जी दोनों को मैं ऑफर देता हूं कि आप हमारे साथ आ जाओ और हम आपको जो शक्ति देना है, जो आपको विजय करना है, वो हम लोग कर लेंगे। आपको वहां जाने की क्या जरूरत है, यहीं पर आइए। मोदी जी सर अभी बौखला गए हैं। इस देश में उनके सभी जुमले और झूठे बातें जो वो फैलाते थे, वो अभी लोगों ने यहाँ पर आपसे एक चीज में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बात शुरू करी है गड़े भट्ट साहब। मेरा कोई इरादा नहीं था आपसे पूछने का, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने बात कही है इसलिए पूछ रहा हूँ जी। मैंने मोदी जी को ऐसे कभी बात करते हुए पहले नहीं देखा है। वेरी जी। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि भाई मंगलसूत्र खींच करके लूट करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको आपके सारे के सारे रिसोर्सेज दे दिए जाएंगे। वो क्या है कि वो कांग्रेस की एक्सरे मशीन आपके घर में आएगी और आपके पास अगर 2 भैंस हैं तो 1 भैंस उधर दे दी जाएगी, 1 भैंस लेके जाएगी कांग्रेस जी। तो ये क्या हो रहा है सर? मतलब ऐसे तो कभी मैंने देखा नहीं है प्रधानमंत्री जी को। उसी पॉइंट के ऊपर मैं उसी पॉइंट के ऊपर आने वाला था सर। जी मैं वही पूछ रहा हूँ। तो जी, तो जिस तरह से पिछले 10 सालों में मोदी जी को भाषण में ये कहना चाहिए कि पिछले 10 सालों में सत्ता में बैठ के उन्होंने देश के लिए क्या किया है, लेकिन उसका एक भी जगह उन्होंने जिक्र नहीं किया कि हमने ये योजनाएं लाई है, ये विकास हमने किया है, ये डेवलपमेंट हमने की है। उसके एकदम विपरीत मोदी जी देश में, जैसे पंचायत के इलेक्शन में भी वहां का सरपंच का कैंडिडेट, उसकी भी गरिमा और उसका भी मेंटल, उसका भी जिसको वैचारिक ऊंचाई कहते हैं वो ज्यादा होती है। लेकिन मोदी जी के भाषणों में वो ऊंचाई दिखाई नहीं दी। उसके खिलाफ इस देश का लोकतंत्र खराब करने के लिए और इस देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश मोदी जी ने की, ढोंग किए, नाटक किए। लेकिन इस बार उनका नाटक जनता ने पूरा ठुकरा दिया है। मंगलसूत्र की तो आप कहेंगे इस बार सफल नहीं होंगे, लेकिन एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं। अब पहली बार इतने सालों के बाद, 5 साल के बाद, 2019 के बाद पहली बार, क्योंकि मोदी जी को मैं फॉलो करता हूं, 2002 से फॉलो कर रहा हूं उनको, और 2002-2003 में प्रदीप जी और मैं पहले, मतलब ये पहला शो था जिसने कहा था कि एक दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे जी। उस वक्त लोग हमारे पे चिल्लाते थे, पता नहीं क्या कुछ कहते। वैसे ही मैं कहता हूं कि एक दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। भले लोग हम पर हंसे, जो मर्जी करें, उनकी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी, जो मर्जी कह लो। नहीं सर, इस बार ही राहुल गांधी जी पंतप्रधान बन रहे हैं। सर इस बार बनेंगे या अगली बार बनेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एज इज ऑन हिज साइड, अभी तो यंग आदमी है, ऐसी क्या बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, पहली बार इतने सालों के बाद, प्रदीप जी सुनने वाली बात है, पहली बार इतने सालों के बाद मोदी जी को फिर मैंने उस भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखा है,
राहुल गांधी को शहजादा बुलाया, शहजादे, राजकुमार, ये सब। यार वो आदमी कितने 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 किलोमीटर चला? 9000 किलोमीटर पहले चला, उसके बाद 4000 किलोमीटर उसके बाद चला। वो कारपेंट्री तरखान की जो शॉप होती है, जिसको सुतार बोलते हैं, दिल्ली के अंदर, वहां पर उसके साथ बैठ करके उसने उसके साथ टेबल बनाया। मोटरसाइकिल की दुकान के अंदर बैठ गया मैकेनिक, उसने मोटरसाइकिल ठीक करी। धान जो होता है, लोग धान उगा रहे थे, उनके साथ खड़े होकर उसने धान की बुआई की। तो वो शहजादा कहाँ से हो गया सर? उनके पिताजी को एलटीटी ने मार दिया, उड़ा दिया। उनकी माताजी को उनके खुद के बॉडीगार्ड्स ने मार दिया। तो सर वो शहजादा तो जरा ठीक लगता है आपको? क्या ये क्या क्या कहेंगे इसके बारे में आप? नहीं, अभी क्या है कि मोदी जी का जिस तरह से लाइफस्टाइल है, वो खुद ही राजा महाराजाओं की जिंदगी जीते हैं और कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूं। और जो मैं कहने वाला था वो आपने सब कह दिया है कि वो अभी इस बार ये सब जो कह रहे हैं कि आज देश का ऐसा कोई तबका नहीं है कि जिसके साथ राहुल जी ने बात नहीं की है, उनके साथ मिलकर उनका दुख साझा नहीं किया है। लेकिन इस देश में गरीब घर से आया हूं ये ढोंग करने वाले मोदी जी खुद 30 लाख का सूट पहनते हैं, 8000 करोड़ के फ्लाइट में घूमते हैं। और सर मजे की बात यह है कि अडानी और अंबानी के नाम पे जो राहुल जी हर भाषण में हर जगह पे कहते थे कि ये दोस्तों का घर भर रहे हैं, तो अभी उनके ऊपर बोलने के बाद परसों, शायद मुझे लगता है परसों ही, मोदी जी ने अडानी अंबानी के ऊपर एक स्टेटमेंट दे दिया है। तो राहुल जी शहजादा नहीं, लोगों का नेता है। लोगों ने पिछले 2 भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देख लिया है, क्योंकि उनका खुद का घर नहीं है, घर से बाहर इन्होंने निकलवा दिया। देश का शहजादा एक तरफ से बोल रहे हैं। लेकिन टेम्पो आया आपके पास कि नहीं आया? जी, आपके पास टेम्पो की वही उसी टेम्पो के ऊपर ही मैं आ रहा हूँ। अगर आया तो कुछ यहाँ भी भेज दो, बहुत जरूरत है। क्या है हालत कि खराब है। मैं भेज दूंगा, लेकिन वो क्या है कि मोदी जी के पास से वो पहले हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि पूरे टेम्पो मोदी जी के पास मोदी जी कहते हैं आपके पास पता नहीं कितने टेम्पो आए अडानी अंबानी से। टेम्पो से माल आता है सर, टेम्पो से माल आता है, उनको इसलिए मालूम है क्योंकि उन्होंने हर बार लिया है, उन्होंने हर बार लिया है। और ये जो बात उन्होंने कही, मणिशंकर अय्यर जी को कब रोकेंगे आप? मणिशंकर अय्यर फिर बोले कि पाकिस्तान से आप उलझो मत, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, ये होगा वो होगा, प्यार मोहब्बत। तो ये आपके सैम पिट्रोडा एक बार बोले इनहेरिटेंस टैक्स, उसके बाद फिर काले गोरे, अफ्रीकन, व्हाइट, इस भेदभाव, भले कुछ भी हो, इलेक्शन मोड पे पूरे देश जब है, सीनियर लीडर इस प्रकार से बात करना। चन्नी साहब बोले कि कब होता क्या होता है वॉर के, जब इलेक्शन आता है तो सेना पर अटैक होता है। विजय विदेटीवार कि कोई पुलिस ऑफिसर जो आरएसएस के संबंध थे, उसी के रिवॉल्वर या राइफल से हेमंत करकरे पर अटैक हुआ। तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बटन कभी जब सब ठीक चल रहा है, बिकॉज आपका जो है मैनिफेस्टो सुपर्ब है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। यस, राहुल गांधी जी आप रूट मैप भी दिया कि पैसे कैसे मैं दूंगा, तो क्या जरूरत है, कैसे कंटेन करेंगे इनडिसिप्लिन? नहीं, एक्चुअली अभी सैम पित्रोदा जी की बात हो या फिर बाकी जिन नेताओं का आपने जिक्र किया, उनके खुद के पर्सनल ओपिनियंस थे, और उसके बाद सैम पित्रोदा जी ने उनके पद का राजीनामा भी, वहां पे इस्तीफा भी दे दिया है। तो बाकी रही बात बाकी के नेताओं की, तो उनका पर्सनल ओपिनियन होगा, लेकिन पार्टी जो जिस मैनिफेस्टो की आपने बात की, उसी मैनिफेस्टो के ऊपर काम कर रही है। और हम उसमें गलत क्या उन सभी गलत क्या है जो सैम पिट्रोडा ने कहा? जी एकदम एकदम मुझे तो उसमें कुछ गलत दिखता नहीं है। सैम पिट्रोडा साहब यही कहना चाह रहे थे ना कि भारत जो है, इतनी ज्यादा भिन्नता है भारत में, अनेकता में एकता है भारत में। नहीं सर एक मिनट सर जी बोलिए सर, आपने जो कहा, मैं अभी ये कहना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने और उनकी पूरी मंडली ने इस देश के लोगों के दिमाग को पूरी तरह से किसी घटनाओं को समझने की जो शक्ति थी, वो न्यूज चैनलों के माध्यम से खत्म करने की कोशिश की और वो सक्सेस रहे हैं। तो इस देश में लोगों को मेंटली डिस्टर्ब करने का और उनका ब्रेन वॉश करने का काम बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ने किया है। तो ये सब समझने की मेंटेलिटी और उतनी दिमाग की ऊंचाई इन लोगों ने रखी नहीं है। तो मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता,
क्या सही क्या गलत हो सकता है अभी कि आने वाले उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा क्या है, मतलब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग वो तो यही बोल रहे थे ना, अनेकता में एकता है हमारी, देखिए। मेरी कॉम रही चिल्लाने लगी वडेट्टीवार वहां साहब से की कि जो ये क्या करें हम, जो जो ईस्ट में है सब चाइनीज है क्या। अभी बड़े बड़े जी। जो दिग्गज जो सोशल फील्ड जी। में एक्टिव है वो ऑपोजिशन करने लगे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। मैरी कॉम गेव एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, पीपल फ्रॉम द जी। साउथ कंपेयरिंग देम टू अफ्रीकन्स। ये क्या है, रेसिस्ट कमेंट? नहीं, रेसिस्ट तो नहीं था जैसे इन्होंने कहा, लेकिन फिर भी उनका खुद का अभी ये चुनाव के समय में नहीं आना चाहिए था। लेकिन जो वडेट्टीवार साहब की जो आपने बात की, उन्होंने जो जिक्र किया, एसएम मुशर्रफ साहब महाराष्ट्र के महापुलिस पुणे पुलिस से महासंचालक थे जी। जी। और उन्होंने उसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च करके, उस वक्त वो बहुत बड़े अफसर भी थे, तो उन्होंने किताब लिखी है हु किल्ड करके नाम की। वहां का रेफरेंस लेके, उसी रेफरेंस के आधार पर उन्होंने बात रखी थी अपनी। और मुशर्रफ साहब ने उसके बारे में सैकड़ों जगहों पे बात की है कि आरएसएस उस वक्त आईबी का जो हेड था वो कौन था, वो देख लीजिएगा। और प्रभाकर गोविल शायद उनका कुछ तो नाम था, तो उनका भी नाम वहां पे एसएम मुशर्रफ साहब ने लिया है। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरसी है। और करकरे, हेमंत करकरे साहब के पास, जिनकी जान इसमें गई, उनके पास आरएसएस के खिलाफ किस तरह से आरएसएस इस देश में सत्ता लाने के लिए हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काती है, किस तरह से बीजेपी और आरएसएस इस देश में जातीय और धार्मिक बट बालाजी गड़े पाटिल साहब, यू नो, टकराव करवा लोग जो रही है। नॉर्मली बात कर, आप ठीक है कॉन्स्पिरेसी है, बट योर गवर्नमेंट वाज देयर, आपका सरकार था, कांग्रेस एनसीपी का सरकार था, यू वर रूलिंग टिल 2014 इन स्टेट एज वेल एज सेंटर। तो ना, एंड उज्जवल निकम वाज रिपोर्टिंग टू योर स्टेट होम मिनिस्ट्री। तो आप कैसे बोल सकते हो ऐसे? मींस मेरा कहना है कि ये वक्त शायद था, या फिर आपको उज्जवल निकम को यानी पोलराइज करना चाहते थे वर्षा गायकवाड़ जी के लिए, तो वहां पर शायद सक्सेस हो गया होगा आपका, बिकॉज वहां पर पूरे मुस्लिम दलित वो सब इकट्ठा हो गए और वर्षा गायकवाड़ के साथ है। टोटल एक माहौल बन गया है नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में, जहां वर्षा गायकवाड़ जी का एक अपलिफ्ट हो गया है और एक हवा चल रहा है कि यस शी इज पुटिंग अ फैंटास्टिक फाइट देयर। वो तो है, वहां तक ठीक है, बट पूरे महाराष्ट्र में देखोगे तो प्रश्न पूछेंगे आपको। आपको क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है महाराष्ट्र में, बताइए। महाराष्ट्र में सर, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 35 से ज्यादा सीट्स, 30 से 35 तक सीट जीत रही है। मैं यहाँ पे जुबानी बोल रहा हूँ। नांदेड़, मराठवाड़ा में 8 सीट से 8 जगह है वहां पे, वहां से नांदेड़ और लातूर कांग्रेस जीत रही है। उसके बाद हिंगोली, परभनी और धाराशिव, उस्मानाबाद जो है अभी धाराशिव बन गया, ये तीनों शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की पार्टी है, यानी कि महाविकास आघाड़ी की 5 सीटें अभी कंफर्म हम जीत रहे हैं। बीड़ सर, बीड़ में भी हम जीतेंगे। बीड़ में टफ फाइट है, बीड़ में हम जीतेंगे और बीड़ वहां पे महाविकास आघाड़ी जीत रही है। अगर आप बीड़ जीत रहे हैं, अगर आप बीड़ में जीत रहे हैं तो फिर तो आपकी 40 के ऊपर आएंगे। जी सर जी। और उसके बाद हम जालना में भी जीत रहे हैं सर, जालना में भी हम वहां पे राहुल गांधी को हराएंगे। टोटल मराठवाड़ा जीत गए फिर तो बचेगा क्या? वहां पे 0 10 विदर्भ की जीत गए, 8 मराठवाड़ा की जीत गए, 18 तो यही हो गई। जी सर। एक एमआईएम को हराना पड़ेगा औरंगाबाद में। अभी वहां की जनता तय करेगी, इस बार हराएगी एमआईएम को वोट देके, बीजेपी को दे रहे, उनको समझ में आ रहा है। जी चलिए गड़े पाटिल साहब। लेकिन सर अभी एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वहां पे जिस तरह से हमने जमीन पे काम किया है, लोगों में एक गुस्सा है। मोदी जी के झूठे बातें, मोदी जी जिस तरह से उस पद की गरिमा को ध्यान में ना रखते हुए जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। उसके बाद 400 पार का नारा उनको लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। मोदी जी ने और बीजेपी ने जो एड्स चलाए कैंपेन के लिए, वो लोग बिल्कुल देख नहीं रहे थे जैसे पहले 10 साल पहले। रुकवादी का तो पूरा, हाँ वो तो सर, वो तो कितनी ट्रोल हुई आपने देखी है, कितने मीम्स उसके ऊपर बने हैं। उसके बाद जो भी आ रही है, मेरी गारंटी मोदी जी के साथ वाली जो भी एड्स चल रहे हैं उनकी, वो भी एड टीवी के ऊपर आने के बाद लोग चैनल बदल ये भी बता दें कि अभी जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, हमारे स्टाफ के कुछ लोग हैं, उनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है जी। अरे यार वो बॉम्बे के कोई हॉस्पिटल उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वो बोलते हैं भाई साहब जाइए, पैसे दीजिए पहले, उसके बाद बात करेंगे।
या कोई ठीक ठाक इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड लेकर के आओ, ये हो क्या रहा है इन एन इवेंट। उसके बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। फिलहाल जी बालाजी गड़ेपाटिल साहब, इतने दिनों के बाद आप हमारे शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आपको भी सर। और जबरदस्त ऊर्जा दिख रहा है आपके चेहरे में, एक जबरदस्त ऊर्जा। बिल्कुल दिख रहा है। विधानसभा की तैयारी के लिए लग चुके हैं। क्या सर, बात, क्या विधानसभा। बात, क्या बात। यस, हर हर महादेव, नमस्कार। हर हर महादेव, नमस्कार। चलिए सर, प्रदीप जी, वो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो तो बड़े उत्साहित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लीडर भले भले उत्साहित हो या ना हो, क्योंकि लीडरों को तो अपनी संपत्ति बचानी है ना, तो वो तो उधर ही भागेंगे।